Good morning. Colorectal cancers or cancers per se of any organ is increasing exponentially year on year. The way it is growing, it's very important for us to focus in areas of screening, or I can say the prevention part of it, because preventive methodology is more promising than treating the cancers only as a methodology adopted by hospitals. Today, when I look at colorectal cancers, over in last 2 decades, they have grown in an amount in youngsters to a greater numbers. And these numbers are alarming. Why? Because if a young person is impacted by colorectal cancer, the outcome can be variable depending upon the time when he reaches the hospital. So ideally, to come to understand that one has cancer or not, it is rightful way to approach the hospital and undergo a comprehensive screening program which involves certain tests, and we are glad to announce today that Apollo Hospital Bhubaneswar is launching colorectal cancer screening program, which has a focus of detecting the cancer early. I would also want to say this is a program which is just not only limited to seeing the one physician, which is the person looking after the specialty, but it is a multi-specialty involvement. As you can see on both sides, I have got specialists, especially Dr. Sushant Sethi driving medical gastroenterology. Then we have Dr. Prashant Das looking after colorectal cancers per se, and Dr. Shreya Das on diagnostic aspects. So it is a multi-specialty involvement. It's important for people to first understand the need of undergoing this test. Why? Because if you share the data at which it is growing, it's important for us to spread the awareness in the community so that people start approaching hospital not for cure but for diagnostic of the cancer. So I would like to only urge one thing, that though this is one of the few programs we have launched on the same lines earlier on lung cancer and other cancers, let's focus on increasing awareness in the community so that people start approaching the hospital for undergoing screening programs. And we have a program which is known as a COLFIT, which comes with a combination of addressing the burden detection once a patient approaches the hospital. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Prashant Chandra, surgical oncologist, to say us how we will deal with the rising concern of colorectal cancer in India. कोलोरेक्टल कैंसर इट इज़ उसका ऐसा है कि आप अगर देखेंगे इंसिडेंट्स तो हर 1 लाख में लगभग 7 लोगों को होने के चांसेस हैं, मगर जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसमें भी इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अभी हमको क्या करना है, ये सारे बहुत कॉमन सिम्टम्स आते हैं जो कि यूजुअली लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं। क्या रहता है, जैसे मोशन में किसी का खून जा रहा है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को डायरिया हो रहा है, तो ये क्या यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के किसी स्पेशलिस्ट को दिखा के उसको थोड़ा नेगलेक्ट कर देते हैं। जबकि आइडियली क्या होना चाहिए कि एवरेज रिस्क पॉपुलेशन जो बोलते हैं हम लोग, वो 45 से 75 साल के जो लोग होते हैं उनको एनुअली साल में एक बार एवरेज रिस्क के हिसाब से कम स्टूल का टेस्ट जो है उसको स्क्रीनिंग को करना चाहिए। उसके अलावा मान लीजिए किसी को और कोई बीमारी है, जैसे फैमिली में किसी को कोई कोलोनिक कैंसर का बीमारी है या फिर कोई जेनेटिक सिंड्रोम है, जैसे कि फैमिली पॉलिपोसिस और कोई जेनेटिक सिंड्रोम किसी को भी है, पिताजी को, मौसा जी को, मामा जी को या फिर पैटर्नल साइड में, तो उनको ये सब स्क्रीनिंग करवाने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए कोई सिम्टम्स लेके आता है कि पैखाना में खून जा रहा है, बार बार डायरिया हो रहा है, जैसे पहले से उनका मोशन होता था वो अगर चेंज हो गया है, हार्ड स्टूल जा रहा था, स्टूल का दांत पतला हो गया है या फिर उसके साथ मिलके ब्लड जा रहा है, तो उनको तुरंत अपने स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जिसमें कि हम पहले तो या फिर उनको मान लीजिए किसी को कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन डिजीज़ जिसको बोलते हैं, वैसा एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है, तो इन सबको जो चांसेस रहते हैं कोलोन या रेक्टम कैंसर होने के, उनको हम लोग स्क्रीन करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत छोटा टेस्ट है कि उनका जो स्टूल है तो उसको कलेक्ट करके एक FIT टेस्ट जो है, जिसके बारे में डॉक्टर श्रेया दास बात करेंगी, वो उससे टेस्ट हो सकता है। और अगर कोई स्क्रीनिंग में कोई डिटेक्ट होता है कैंसर, तो उसको हम लोग कोलोनोस्कोपी या से करके, कोई पॉलिप भी है, छोटा मांस जो बड़ा हुआ है, तो उसको भी डिटेक्ट करके उसकी बायोप्सी या उसको टोटल रिमूवल भी हो सकता है। इससे क्या होगा कि मरीज़ को हम जल्दी से पकड़ पाएंगे
उसका जो कैंसर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके डिटेक्शन में स्टेज बढ़ जाने के उससे पहले ही हम पकड़ के उसको ट्रीट कर पाएंगे। हो सकता है बस सर्जरी से ही क्योर हो जाए, या फिर उसके हिसाब से उनको जो लॉन्ग लाइफ है और ट्रीटमेंट कॉस्ट वो सारा कम हो सकता है। थैंक यू। Thank you, sir. Now I request Dr. Sushant Sethi, sir, to enlighten us about the reasons of screening and what is the importance of it. Colorectal cancer, the importance has been, we are seeing nowadays, we are concerned globally because of rising incidence of colorectal cancer. Earlier, colorectal cancer was limited to some developed countries, but nowadays in India also we are seeing rising in incidence of colorectal cancer. We are concerned regarding that. Second, importantly, the age of onset is preceding. Earlier, it was a disease of elderly, but nowadays global incidence and prevalence say the disease onset is very early. So once somebody is affected at early age, that means the chance of causing complications because of colorectal cancer is very high. So what we are aiming at prevention. We always know prevention is better than cure. If we can prevent something, then tomorrow it will not cause any bigger burden, global burden to our society and globe. What we have planned, so by this call program, which is launched by Apollo Hospital, and Apollo Bhubaneswar is a part of it, what we are going to do, we are going to do the screening of the people, those who are at risk of colorectal cancer, or else the age group, those who are at risk of colorectal cancer. So we are going to screen 45 to 75-year-old, those who are at risk, and less than 45-year-old, if they are having high risk, as Dr. Prashant has said, family history of colorectal cancer, IBD, inflammatory bowel disease like ulcerative colitis and Crohn's disease, somebody is having, they are more prone or vulnerable to colorectal cancer. Somebody is having polyp, what do we do? In colonoscopy, we check polyp. If polyp is there, we remove that polyp. Once polyp is removed, there is no chance of malignancy further. That means we are avoiding the cancer which could cause future problem by just simple procedure, a polypectomy. So that will be done. So as a part of screening program, so we are aiming those tests. One is fecal immunochemical test, which is a stool test, which the detail will be elaborated by Dr. Sriya. And second one is colonoscopy or sigmoidoscopy, what we aim at. So that will be these are the parts of colorectal cancer screening program. And apart from that, routine blood tests like hemoglobin, TLC, we will get some clue. So by identifying the subset of population, those who are at risk of colorectal cancer, and second, those 45 to 75 years old routinely if we screen people, normal people also, if we are thinking that this patient particularly is having some risk, then we will go for other sophisticated tests. Otherwise, we will do simple tests to screen there is no colorectal cancer or chance of colorectal cancer is not there. So these are the comprehensive tests which is launched by as a name of COLFIT program from Apollo Hospital Bhubaneswar. So we are hoping the people of Odisha will be benefited from that, and by that, so we will remove colorectal cancer. At least it will cause a global help for the colorectal cancer eradication. So at least so that the global burden will be low. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Shriya Das, Senior Consultant Hematology, to enlighten us with the purpose and benefits of fecal immunochemical test. Thank you. Good afternoon, everyone. Fecal immunochemical test, before going to the test, this is a stool test which is a very non-invasive test, and it has very high sensitivity. Sensitivity of a test indicates the higher the sensitivity, the better it is for the screening purpose. Our main aim is to screen for the earliest disease and prevent, if you can screen for the pre-malignant condition. Before colorectal carcinoma, there are pre-malignant condition, like pre-cancerous condition which we call, which are the precursors of colorectal carcinoma. For those cases also, this test can be screened. This is useful for screening. In India, the burden of colorectal carcinoma is lesser in compared to the Western countries, but the patients usually present in the later stage. So the prognosis is bad compared to the Western countries in India because of the awareness, because of the lack of awareness and lack of proper screening test. So this FIT test it has come out, it is a simple stool test which is very non-invasive one. And it is a stool occult blood test. In compared to the previous conventional stool occult blood test, it has a very high sensitivity. That means it can detect up to 4 nanogram of the
occult blood, which is occult blood means blood is not visible to the eye, but it is present in the stool, which is the earliest indicator of colorectal carcinoma and precursor region. So previously, the conventional test, the best one which we had, that detected around 200 microgram. If it is present, then only it was positive. But now, with this newer improved fecal immunochemical test, since the principle is immunochemical ones, it detects fecal hemoglobin as well as fecal hemoglobin haptoglobin complex. So it has a high sensitivity. And another thing is that since the hemoglobin haptoglobin complex is detected, that complex is more stable than the hemoglobin which is detected in earlier tests. So like even slightest of the bleeding from the GI, lower GI tract, or even some cases lower upper GI tract also, it detects that it can be detected through this test. So it is a very good screening test along with the colonoscopy. If it can be, it is launched in Apollo Bhubaneswar, so it will mostly it will detect 98% of colorectal carcinomas with this screening program. Thank you. Thank you, ma'am. I thank all my esteemed dignitaries for introduction and launching the COLFIT program at Apollo Hospitals, Bhubaneswar. The forum is now open for question and answers. एक कैंसर होने से कैसे पता चलेगा आदमी को, जैसे कि ये कैंसर हुआ है और ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? कैंसर होने से कैंसर होने से कैसे पता चलेगा? ओडिया कहूँ केमती जना पड़ो कैंसर अच्छी कि नहीं। गोटे जिनस कैंसर थी आउ गोटे जिनस कैंसर को प्रिवेंट करने जो कॉलफिट प्रोग्राम विषय आम कहूँ यहाँ कैंसर को प्रिवेंट करने जमी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आम जब किसी जिनस को जाना आगु हबार संभावना अच्छी आम दूरे दे पार। तेणु कौन आम देखु ना 45 to 75 इयर्स ओल्ड लोक मानकर कोलोरेक्टल कैंसर बेसी होम देखिलु। आम आहरी देखिलु से आम समस्त को आह्वान करूँ समस्ते आसिक टेस्ट गुड़ा करूँ कहार कैंसर रिस्क अच्छी कि ना जानू केमती जानू जदि समस्त गोटे फिकाल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट जो टेस्ट कथा मैडम कहते देखा ताले आम जानू स्टूल रे ब्लड आसूची ब्लडटा खाली आखि देखा जापे खाली आखि देखा न जापे जोटा खाली आखि देखा जाऊँगी ब्लड आसूची तो ऑब्वियसली आम करने पड़ो कोलोनोस्कोपी करने पड़ो जनक झाड़ा रक्त पड़ुची से गोटे बड़ लक्षण जो आप पचारे जो झाड़ा रक्त पड़ुଛି ताले कोलोनोस्कोपी करवाटा पक्का। झाड़ा रक्त पड़ार कारण बहुत हो पाए कि ता भर जो बड़ कारण सबुठ बड़ कारण और सीरीयस कारण से कोलन कैंसर। तेणु जनक जब झाड़ा रक्त पड़ुଛି ताले कोलोनोस्कोपी करवा कौन कारण जाना और ताकू निराकरण करवा तार ट्रिटमेंट करवा चिकित्सा करवा सेटा जरूरी। द्वितीय जिनस जोटा कि खाली आखि देखा ना ब्लड किंतु ब्लड लॉस होती जोटा कि अकल्ट ब्लड कहुए से अकल्ट ब्लड को केमती डिटेक्ट करा जाए डिटेक्ट ना सेटा गोटे फिकाल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट जोड़ा ता माध्यम कराए। स्टूल अकल ब्लड गोटे टेस्ट जोटा आगुरी होता से एक्चुअली तार चांस पिकअप कर कम से जो फिकाल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट जोड़ा अच्छी रिसेंटली से स्टूल जनकर ब्लीडिंग होती कौटे रक्त झरुची से खाली को देखा जाऊनी कि माइक्रोस्कोप देखा जाऊँगी रक्त झरुची बोली से आम जापर तार यहाँ थिबार संभावना अच्छी। जदि से टेस्टा पॉजिटिव आसला ताले आम ताकू कोलोनोस्कोपी करने कहवा देखा कौन अच्छी कि ना। किंतु जदि जनकर झाड़ा रक्त पड़ा बा अल्सरेटिव कोलाइटिस भाई गोटे बेमारी अच्छी क्रॉन्स डिजीज भाया गोटे बेमारी अच्छी बा फैमिली हिस्ट्री कॉलन कैंसर जमी डॉक्टर प्रशांत कहते फैमिली हिस्ट्री कॉलन कैंसर अच्छी निजर पैटर्नाल बा मैटर्नाल साइड निजर बापा घर साइड्रे क्या बा मार घर साइड्रे क्या कॉलन कैंसर अच्छी ताने जिनस कॉलन कैंसर आसीपे करा दरकार। जो जनकर पॉलिप रहा मांस वृद्धि होती कौन कारण देखा जाता कोलोनोस्कोपी कॉलन गोटे मांस वृद्धि होती से भी से पॉलिप को आगू जाकि कैंसर भी करें तेणु सी भी करवा दरकार तापाई। तेणु आम यही सब जिन कले जाकि आम जाना कि लोकटार तार कॉलन कैंसर हबार संभावना अच्छी। कॉलन कैंसर जो आम जमी कहली कॉलन कैंसर प्रिविलेंस इन्सिडेंस कहीं बढ़ुची दु तीन है मेजर कारण गोटे है अर्बानाइजेशन माने आगुरी जो खाद्य खाऊलु आम आजिकल जो खाद्य खाऊँ वेस्टर्न डाएट माने एटा हाई जंक फूड लॉस ऑफ लैक ऑफ फाइबर फ्रेश वेजिटेबल्स वाटर्स आउ जो नॉन वेज बेसिकली रेड मीट ये देखा जाए ये कॉलन कैंसर करिवारे सहायक होती। सेमती अल्कोहल आउ तमाकू एक्सेसिव अल्कोहल सेवन आउ एक्सेसिव तमाकू सी भी कॉलन कैंसर करिवार गोटे कारण से आम देश में आम राज्य में कॉलन कैंसर जो रेट से वृद्धि पाँच जोटा कि पाश्चात्य देश मान आगुरी था। पाइल्स प्रॉब्लम तो बहुत सारा लोकंर अछि तो से समस्त कोन टेस्ट करबा दरकार नै मोर जदि पाइल्स रो किछि सिम्पटम देखो कि स्टूल के ब्लड पड़छि तो आमे एटा निहाती टेस्ट करबा दरकार।
जो प्रश्न आप पचार से लोक मैंने से समस्या ही सम्मुखीन होती कौन हो झाड़ारे रक्त पड़े से पाइल्स बोली भावती जोड़ा पाइल्स न अन्य किसी हो पारे तेणु यूट्यूब भी देखिए झाड़ारे पड़ू रक्त गोटे अच्छी भिडियो आम प्राय सचेतन करूँ समस्त लोक जो झाड़ारे रक्त पड़ा जनकर थे जीवन काल में थे पड़े भी आमको जानवर अच्छे कारण कौन अच्छी जो पाइल्स कथा लोक भावुँ से पाइल्स न हो आउ कौन हो पारे पाइल्स हेल्ले बेसी किसी करने दरकार ना कि जो कैंसर थी आम नेग्लेक्ट कलु कहीं मुझे देखुची मो पाक पेसेंट मैंने आसुँच झाड़ा रक्त पड़ुची सी अन्य पचारि गाँव पचारिकी अन्य मेडिसिन खाऊँ चेरमूली देसी मेडिसिन भी खाऊँ किंतु जितेबाला मो पाक आसुँच मुझे कलोनोस्कोपी कला देखो कलन कैंसर अच्छी तेणु पाइल्स माने रक्त पड़ला माने जे पाइल्स यहीटा गोटे भूल धारणा यही धारणाटा को आमको दूर करने पड़ो जो जनक रक्त पड़ा ताको आम निश्चय कलोनोस्कोपी करने पड़ो से पाइल्स अच्छी ना अन्य कौन अच्छी देखापी बाकी जो एडवांस जोड़ा एडवांस कॉलन कैंसर है बहुत प्रकार सिम्पटम्स हो पारे माने पेटर पेन हो पारे आउ पेटर मांस वृद्धि हो पारे ता छड़ा भोक कम लगे देह दुर्बल लगे झाड़ा जो एमती रक्त पड़े से ये सब जिन हो पारे बहुत पूरा सिम्पटम्स कि एडवांस हुए कॉलन कैंसर कौन हुए यूजुअली हठात के ना जना पड़े ना जदि ब्लीडिंग है सब कमन सिम्पटम जेहेतु लेफ्ट साइड रेक्टम पाखे जो कैंसरटा अच्छी देखा जाए रेक्टम जो तल पर्सन 60 ରୁ 70% केस कैंसर तल पर्सन हुए गोटा रेक्टम और रेक्टोसिग्मोइड एरिया से एरिया जदि कॉलन कैंसर डेवलप कला टी जल्दी जना पड़े केमती ना ब्लीडिंग हुए किंतु जदि सिकम जोड़ा कॉलन ऊपर पार्श्व से जदि कैंसर है कि ट्यूमर है हठात जना पड़े ना कहीं कैपासियस ट्यूमर बहुत बड़ ना पर्यंत सी किसी लक्षण मान देखा जाए ना तेणु ताको आगुरी धरबार अच्छी से डाक्तर परामर्श नेबा जरूरी सर जदि जने पेशेंट डिटेक्ट करि पारुनी कि जानि पारुनांती जे मोर ये प्रॉब्लम अछि तो एटा ये कैंसर रो लक्षण सपोज से थर्ड की फोर्थ स्टेज रे पहुंचछन तो डेथ चांसेस टा केते डेथ्र चान्स केते सेटा गोटे शब्द कहीहब ना कहीं बहुत बहुत जिन डिपेंड करे किंतु गोटे भल जिन कॉलन कैंसर है कॉलन कैंसर इज ट्रिटेबल ताकू ट्रिटमेंट करी हबो कॉलन कैंसर रे जो केमोथेरापी अच्छी जो मेडिकेशंस अच्छी अन्य कैंसर मानक तुलन रे तार रेस्पॉन्स बेटर से आम जब आर्ली कॉलन कैंसर को डिटेक्ट करवा तार ट्रिटमेंट करी हबो आउ तार जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ताकू बढ़ाई दे पारिबा किंतु केते दिन सेटा गोटे शब्द कहीहब ना कहीं सेटा सब इंडिविजुअल ऊपर भेरी करे हाँ ट्रीटमेंट करूचे तो पहुंची जवार चांसेस हमें क्योर हे परबा डेफिनेटली जदि आम सब जो पॉलिप अच्छी मांस वृद्धि होती से मांस वृद्धि आपको जाई कॉलन कैंसर करार संभावना अच्छी जदि आम पॉलिप को बाहर करदेलु ताले सी क्योर होगला एटा पूरा क्योर जदि गोटे छोट लिजनटे अच्छी तो गोटे एंडोस्कोपिक सबम्यूकोसाल डिसेक्शन जोटा कि मु करूची जदि एंडोस्कोपिक सबम्यूकोसाल डिसेक्शन माध्यम से जो कैंसर हो ऑलरेडी कैंसर हो किंतु म्यूकोसा को थी से बेसी भितर को जाई नथिबो अन्य कुआडे माति नथिबो ताको एंडोस्कोपी पद्धति भी ठीक करा जाय सी पूरा क्योर होगला सेटा किंतु जदि एडवांस चाहिए ताको ता विषय किछ करे पड़े डॉक्टर प्रशांत दास कहबे कौन कौन एडवांस लास्ट में पचरे चाहि सर एटा फर्स्ट टाइम इंडिया रे डिटेक्ट होइछ ना या पूर्व अन्य कोनसी कंट्री एटा डिजीजटा देखो कोलोरेक्टल कैंसर दुनिया सारा रे आमे देखा पाऊँ इंडिया रे कौन होची इंडिया रे आमर जहाँ आप पचारुले एबे कि पाइल्स आउ हेमोरॉइड्स अनफॉर्चुनेटली आमर समस्ते टिके याकू नेग्लेक्ट बहुत कर दियंती सिम्पटम कौन थाए कि सकाळ उठे जन देखियो अल्टरनेटिव होतो माने आगुर नॉर्मल झाड़ा फाड़ा होतो जन वृद्ध लोक अच्छी कि जन नॉर्मल ये लोक भी थिबो सकाळ उठला बेलू पतला झाड़ा हबो हठात स्पूरियस डायरिया को कहीं कारण रेक्टाल कैंसर जोटा थाए तल बाटटा बंद कर देछि राति सारा झाड़ा पतला ऊपर रहिला से भर बाड़े गैस लोक कंप्लेन कर गैस हो सकाळ उठला खाली पतला झाड़ा हो रक्त मिसिक आसूची किंतु से आगे इवालुएट करा कथा कि आम रेक्टाल कैंसर अच्छी कि नहीं यहाँ द्वितीय कथा है कि धन आउ को जगार अच्छी कि नहीं धन अलग कोलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन हाराहारी 5 फुट कि 6 फुट लंबा ता देहरे कौ जगार भी कैंसर हो पारे अन्य जगार जब छोट ट्यूमरटा अच्छी ट्यूमरटा धीरे धीरे बढ़ला बेलू सी तो किसी आउ सिम्पटम किसी कर सी कौन से रक्त झड़ुव रक्त धीरे धीरे झरला बेलू देहर रक्त सुखी जाऊ लोक को देखुए कि एनीमिया होती एत एनीमिया कहीं होती रक्त एत कम क्या आसे हेमोग्लोबिन आम बार बार टेस्ट कर 5-6 कहीं आसूँ देखला टेस्ट कला बेलू जाकि कैंसर डिटेक्शन हो इंडिया रे कौन करछंती कि से माने जहाँ काम हो कि जहाँ हो कि नेग्लिजेंस बेसी रही जाऊँगी प्लस ता छड़ा जो पाइल्स को लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रोचे जोटा कि हम पाइल्स में गोटे मेडिसिन खाई दियो टिके बैंडिंग कर दियो तेल ऊपर कैंसरटा था जोटा कि मिस हो जाऊँगी ता छड़ा आप पचारुले कि एडवांस नेचर रे सिम्पटम कौन और ट्रिटमेंटा कौन थाए कि स्टेज हिसाब से
कैंसर देखो 4टा स्टेज थाए सब कैंसर आम कम है जथा जिते शीघ्र आम जो कैंसर को जो स्टेज धरू कोलोफिट प्रोग्रामटा से ही प्लान कराई कि कैंसर हवा पूर्वर कि हवा को जाऊे बेले आम केम धरू यहाँ ता छड़ा जो 4टा स्टेज कथा कहली डेथ जोटा कहते डेथटा आसव सब ट्रिटमेंट फेल्योर पर कि एडवांस स्टेज आसी जाइए जदि से कंडीशन जो केबे किछ करहबनी आजिकल मेडिकल साइंस एत एडवांस कलानी ता छड़ा अपोलो हॉस्पिटल्स रे एत सब एडवांस टेक्नोलॉजी आम सब ट्रिटमेंट करूँ कि इवन 4th स्टेज कोलोन रेक्टल कैंसर रे आम भल रिजल्ट दौचु कारण कहीं कि आपंकर धन्यवाद आगु कहते कि कोलोन की रेक्टल कैंसर अच्छी लिवर को स्प्रेड होगी आगे डेथ हो कि बेस दिन ना आजिकल सेमतिया ना केमोथेरापी इम्यूनोथेरापी टार्गेटेड थेरापी देकी कंट्रोल कराऊँच सर्जरी कराऊँच स्टेज रिकन्स्ट्रक्शन कराई लोक नॉर्मल लाइफ स्पैन भी मेंटेन करूँच माने लेडीज मन को केस रे बहुत के आसे ना हाँ हाँ समस्त को हो लेडीज भी हो पार जेंट्स भी हो पार देखा आमर इंडिया जो प्रिवेलेंस अच्छी 8 पाखापाखि लक्ष्य 8 जन लोक मेल आउ लक्ष्य 5 जन लोक फीमेल से एफेक्टेड रोचंती इंडिया रे ओडिशा रे एवरेज एमती स्टाटिस्टिक्स डेफिनेट ना बट से पाखापाखि सामान द्वितीय प्रश्न जो पचार लक्षण आउ कौन हो पारे डॉक्टर प्रशांत दास मत भल मन पकईदे बाकी ब्लीडिंग तो है ब्लीडिंग छड़ा भी रिसेंट ऑनसेट कन्स्टिपेशन जड़े एल्डरली लोक वयस्क लोकर जब आगु ठीक ठाक चलता कि रिसेंट ऑनसेट कन्स्टिपेशन है कोष्ठकाठिन्य जोड़ा हो झाड़ा ठीक रे होनी सी भी गोटे लक्षण हो पाए सेकेंड डायरिया जदि 3 सप्ताह 4 सप्ताह धरिकी डायरिया लगिक रहा 4 थर 5 थर लगा झाड़ा है सी भी गोटे लक्षण हो पाए अल्टरेसन इन बायोल हैबिट किसी दिन कन्स्टिपेशन हम किसी दिन डायरिया हम सी गोटे लक्षण हो पाए आउ चेंज इन स्टूल कैलिबर जोड़ा कहगला सी भी लक्षण हो पाए तेणु ओल्ड एज रे आम निश्चय जी यही जिन सब लक्षण देखागला आम भाविया काले कोलन कैंसर नुह तो जदि ब्लीडिंग पड़ला तो निश्चय बट यही सब जिन भी देखा पड़ो कोलन कैंसर अच्छी कि ना सर मन गोटे प्रश्न गोटे आसुची मोर सेकेंड की थर्ड स्टेज रे जने पेशेंट एके अछि तो एटा हमें देखु जे विभिन्न प्रकार कैंसर रही छै आपनो ब्रेन कैंसर ब्लड कैंसर बोन कैंसर एटा को ऑर्गन को अफेक्ट करे कोलन है लार्ज इंटेस्टाइन जो कोलन कैंसर कथा कहूँ लार्ज इंटेस्टाइन माने बृहत अंतर जोटा बड़ अंतनाड़ी तार एटा डिजीज जो कोलन कोलोरेक्टल कैंसर कोलन आ रेक्टम तार तल पर्श जोटा रेक्टम कह जाए रेक्टम पर अच्छी मलद्वार जोटा कैनाल सो कोलोरेक्टल कैंसर कहीं कहुई ना कोलन रेक्टम तार कैंसर सो इट इज नोन एज कोलोरेक्टल कैंसर आ जो प्रोग्राम आम को कोल फिट कोलन को फिट करने प्रोग्राम की खाद्य खाइले एगुडा को हबनी जमती कहले सुषम खाद्य जमती माने बेसिकली जो कहीं होची ना एक्सेसिव नॉन वेजिटेरियंस एक्सेसिव जंक फूड फ्राइड फूड अल्कोहल स्मोकिंग एगुड़ा करे तेणु कौन खाइबा आमे सुषम खाद्य बैलेंस डाइट खाइबा जो प्लेट रे आपनकर किछि कार्बोहाइड्रेट माने किछि रोटी आ चावल ट्रावस दाल सी थिबो किछि दाल किछि वेजिटेबल्स किछि मिनरल्स आउ विटामिन्स किछि लाइक फ्रूट्स फ्रेश फिश इज गुड माछटा भल माछ एग व्हाइट आउ एगुड़ा भल खाद्य जो बैलेंस डाइट थी माने किछि कार्बोहाइड्रेट किछि फैट किछि प्रोटीन विटामिन 2 ରୁ 3 लिटर पानी पीबे डेली एड़ा सुषम खाद्य और स्वस्थ खाद्य या खाइले आप ठीक रहिबे सर सबतो बड़ प्रश्न होला जे एटा केते एक्सपेंसिव एक्सपेंस कॉमन मैन केमती ट्रीटमेंट करे एवरेज स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा नहीं है इट्स जो हम लोगों ने पैकेज रखा है वो बड़ा लिमिटेड अमाउंट का है और डिस्काउंटेड है द डिस्काउंटेड पैकेज विल फॉल अराउंड 5 to 10,000 के अराउंड आता है जिसमें ये सारे टेस्ट और सब चीज़ कवर हो जाएंगे एंड टू एंड 5 to 10,000 उसी अंदर मतलब मेरे कहने का मतलब है सो अगर आप डिजीज़ मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे सो डिजीज़ मैनेजमेंट में लाखों रुपए लगते हैं और डायग्नोसिस में अगर टाइम पे होता है विद कंसल्टेशन विद मैं कंप्लीट आपको बता रहा हूँ बिटवीन 5 to 10,000 टुडे इफ समबडी इज स्पेंड कहना है कि अगर प्राइमरी स्टेज में कोई पेशेंट आता है तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा डिटेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ डिटेक्शन की कॉस्ट जो है स्क्रीनिंग प्रोग्राम की कॉस्ट जिसमें एक टेस्ट नहीं उसमें कंप्लीट टेस्ट का पैकेज जो मैं आपको बोल रहा हूँ इंक्लूडिंग कंसल्टेशन एंड सारी चीज़ मिला ओडिशा से यहाँ तक मतलब अपोलो भुवनेश्वर से मतलब कंपैरिजन अच्छा रहेगा हाँ प्रोग्राम तो स्टैंडर्डाइज है अपोलो में द प्रोग्राम इज़ स्टैंडर्डाइज चाहे आप यहाँ कराइए चाहे किसी दूसरे अपोलो में कराइए पॉइंट ये है कि डिजीज़ का बर्डन इतना बढ़ रहा है कंट्रोल करने का एक ही तरीका है लोग जल्दी आगे आएँ तो हॉस्पिटल का बेड की ऑक्यूपेंसी नहीं रहेगी